अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द फार्माकोलॉजी क्लास of third year. In the last lectures, we have covered about the topic of antipsychotics and we have studied detailing of antipsychotic drugs. Now, inshallah, in this class, in this lecture, we will cover a new topic, that is anti-Parkinson drug. So, before going to anti-Parkinson drug, let me give you the idea about what is Parkinson disease. What is the basic pathophysiology behind the Parkinson disease and how it happens and what are the root causes of Parkinson disease. It is a very common disease and it basically depends on the age. It is a age dependent disease and usually very common in our societies and other societies as well. So what is the basic pathology of Parkinson disease is that it is actually a progressive loss of coordination and uncontrollable movement. So how you can define a Parkinson's disease? You can define as it is a degenerative disease that is resulted in the progressive loss of coordination and uncontrollable movements. What is these things, coordination and uncontrollable movements? To understand what coordination is, you can just suppose coordination is basically making a relation between two different things. Coordinate between two different things. It could be anything. So when our brain is try to coordinate between two different things, then this process happens in a specific area of our brain, specific neurons of the brain. इसकी एग्जांपल सबसे अच्छी ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है कोई रास्ता मैं देखना चाह रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से निकलूँगा तो मैं यहाँ पे इस रोड से जाऊँगा तो मैं किस जगह पहुँचूँगा, तो ये अपने दिमाग में मैं सोच रहा होता हूँ, ये कोऑर्डिनेशन होती है। तो ये जो एबिलिटी होती है बंदे की सोचने की, कोऑर्डिनेशन की, इसको हम कॉग्निशन भी कह सकते हैं और इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड होती है। तो ये जो एबिलिटी होती है इसको एक खास न्यूरॉन्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे ब्रेन के। वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किस पार्ट में होते हैं? वो होते हैं स्ट्रैटम. स्ट्रैटम इज अ पार्ट ऑफ अ सेंट्रल ब्रेन and neurons of this part control the coordination and also it controls the movements. Indirectly it controls the movements. So this part is striatum is also controlled by two different regions of our brain. First one is neocortex and the second one is substantia nigra. So these two parts of our brain, these two anatomical parts of our brain give information to striatum and in response striatum further control our different physiological processes. So what neocortex? This neocortex gives information about coordination, cognition and planning or intelligence, you can say, or you can say future planning. फ्यूचर प्लानिंग जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी रास्ते की कि मैं अगर सपोज कर लूँ कि मैं इस रोड से जाऊँगा तो मैं इस जगह पहुँचूँगा, तो ये मैं अपने दिमाग में सोच के ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ। तो ये जो एबिलिटी है मेरी सोचने की, ये कॉग्निशन में आएगी, इसमें कोऑर्डिनेशन में आएगी। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेशन, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं एज के हिसाब से, और जब वो न्यूरॉन्स इस खास एरिया के डीजेनरेट होते हैं तो इसकी वजह से उनके अंदर कॉग्निशन, उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन की एबिलिटी वो कम हो जाती है। तो पार्किंसंस के पेशेंट में ये कोऑर्डिनेशन की एबिलिटी बंद रहती है। ये सिर्फ सोचने की हद तक नहीं है, इवन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, अगर एक ऑर्गन का फिजियोलॉजिकल फंक्शन दूसरे ऑर्गन पे डिपेंड करता है तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन है बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गन्स, और ये इसमें भी जो है न्यूरॉन डीजेनरेशन की वजह से इसमें भी जो है पास इश्यूज आते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास सबस्टेंशिया नाइग्रा. व्हाट डज दिस डू? सबस्टेंशिया नाइग्रा control or give information to striatum through a specific pathway and this pathway is known as dopamine pathway. नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं जो सबस्टेंशिया नाइग्रा से स्ट्रैटम में जाते हैं, उस न्यूरॉन्स के जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है, वो हमारे पास है डोपामीन। और नॉर्मली अगर डोपामीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है फर्दर दो चीज़ों को। एक होती है हमारे पास गैबा को और दूसरा हमारे पास है एसिटाइल कोलिन।
जैसे ही हमारे पास डोपामिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इस पाथवे में जो सबस्टेंशिया नाइग्रा और स्ट्रैटम के बीच में है, इट इनहिबिट द इनहिबिटरी एक्शन ऑफ गैबा। एज वी ऑल नो दैट गैबा इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो गैबा की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी हमारे न्यूरॉन्स में उतना ही ज़्यादा हमारे पास इनहिबिटरी रिस्पॉन्स आएगा। डोपामिन क्या करता है? डोपामिन जो है इनहिबिट करता है गैबा की इनहिबिटरी एक्शन को, और उसकी वजह से जो हमारे पास सीएनएस में जो इनहिबिटरी ओवरऑल जो सीएनएस में इनहिबिटरी एक्शन हो रहा होता है वो रुक जाता है और एक एक्साइटेटरी एक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। ये जो बैलेंस होता है ये कंट्रोल में रहता है एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी एक्शंस में। दूसरा काम क्या करता है डोपामिन? डोपामिन इनडायरेक्टली इनहिबिट द कोलिनर्जिक न्यूरॉन ऑफ मोटर कॉर्टेक्स एंड स्ट्राइटम। जैसे ही डोपामिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये सिर्फ डोपामिन को गैबा को इनहिबिट नहीं करता बल्कि इसके अलावा एसिटाइलकोलिन को भी इनहिबिट करता है। कौन सा एसिटाइलकोलिन? एसिटाइलकोलिन वो जो हमारे पास स्ट्राइटम के पाथवे में भी है और मोटर कॉर्टेक्स में भी है। और मोटर कॉर्टेक्स हमारे क्या करता है? मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो डोपामिन जो है हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स के थ्रू जो है मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो जब हमारे पास इस पाथवे में बेसिकली न्यूरॉन्स की डीजेनरेशन होगी तो जो डोपामिन का लेवल है यहाँ पर वो रिड्यूस हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास गैबा की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और हमारे पास एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। कहाँ पर? मोटर कॉर्टेक्स में। तो ये जो हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो पार्किंसन डिजीज को डायग्नोस करते हैं, वो क्या है? लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ और अनकंट्रोलेबल मूवमेंट, वो इसकी वजह से होता है, इन दोनों की वजह से। गैबा की कंसंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी सीएनएस में, तो ओवरऑल सीएनएस जो है डिप्रेसिव स्टेट में चला जाएगा और इनहिबिटरी स्टेट में चला जाएगा। उसकी वजह से हमारे पास लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी होती है। और उसके बाद जब हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स में एसिटाइलकोलिन का फंक्शन एसिटाइलकोलिन का फंक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, इनके उसको डोपामिन इनहिबिट नहीं कर रहा तो उसका फंक्शन बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से हमारे पास एबनॉर्मल मूवमेंट या फिर अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स आएंगे। उसको फिर हम ट्रेमर भी कह सकते हैं या फिर हम रिजिडिटी भी कह सकते हैं। तो ये इसकी समरी लिखिए। इन पार्किंसन डिजीज द कंसंट्रेशन ऑफ डोपामिन डिक्रीजेस दैट लीड टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ गैबा एंड देन द इंक्रीज इन इनहिबिटरी एक्शन ऑफ गैबा। So the overall CNS goes in the inhibitory state. And the other effect of dopamine is reduced concentration of dopamine is it increases the concentration of acetylcholine specifically in motor cortex that lead to the abnormal signals in the neurons of motor cortex that lead to the impaired mobility. मोटर कॉर्टेक्स से जो हमारे पास नॉर्मली जो न्यूरॉन्स आते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, वो जो मूवमेंट होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है। लेकिन अगर यहाँ पर एबनॉर्मल सिग्नल्स आएंगे तो हमारे पास अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होंगी, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पार्किंसन डिजीज इज ऑल्सो द इम्बैलेंस ऑफ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी रिस्पॉन्स दैट लीड टू द रेस्टिंग ट्रेमर्स एंड रिजिडिटी। तो ये हमारे पास इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास इसके, क्योंकि ये एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है, हम न्यूरॉन्स को तो दोबारा से रिपेयर नहीं कर सकते, जैसे वो डीजेनरेट हो जाएंगे तो फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता जो डोपामिन कंसंट्रेशन है, तो उसकी ट्रीटमेंट बेसिकली जो होती है वो सिम्टोमेटिक बेस पे होती है। तो इसमें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं इसके जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए इसके हैं। सबसे पहला टारगेट है हमारे पास रिप्लेनिशमेंट ऑफ डोपामिन लेवल। किसी भी तरह हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर डोपामिन लेवल को बढ़ा दें ताकि वो जो है अवेलेबल हो अपने रिसेप्टर्स के लिए। इसका सेकंड टारगेट है हमारे पास मिमिक डोपामिन एक्शन और एगोनाइज द डोपामिन एक्शन थ्रू इट्स रिसेप्टर्स। एंड द थर्ड एक्शन इज एंटागोनाइज एक्साइटेटरी एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो अगर हम डोपामिन एक्शन को बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से वो डायरेक्टली जो है वो गैबा को तो कंट्रोल कर लेगा, गैबा के एक्शन को इनहिबिट कर लेगा। और फर्दर जो हमारे पास सिम्टम जो आ रहे हैं, फिजिकल सिम्टम जो आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं? वो एसिटाइलकोलिन की इंक्रीज कंसंट्रेशन की वजह से आ रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कोई एंटागोनिस्ट देना पड़ता है एसिटाइलकोलिन के लिए, जो कि हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं।
तो ये हमारे जो है इसके बेसिक टारगेट्स हैं, फार्माकोलॉजिकल टारगेट्स। अब इसकी ट्रीटमेंट में आने से पहले मैं एक और दफ़ा जो है रिव्यू करना चाहता हूँ कि डोपामीन जो है हमारे पास सिंथेसाइज कैसे होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि डोपामीन कैसे सिंथेसाइज होता है। हमारे पास अमीनो एसिड होता है टायरोसिन दैट कन्वर्ट इनटू L-dopa through an enzymatic reaction, and then further that L-dopa convert into dopamine and restored in the synaptic vesicles. Then upon stimulation or upon the action potential arrives, this synaptic vesicles release dopamine neurotransmitter in the synaptic cleft, and here from synaptic cleft it has three different destinations. It either reuptake into the receptor through reuptake mechanism, or it either bind to its respective receptors, dopaminergic receptors. And the another fate is that there is glial cells beside the synaptic cleft, and it also reuptake the dopamine neurotransmitters. And here in the glial cells we have different enzymes that is responsible for its metabolism. So what are the two main important enzymes in the glial cells? First one is MAOB and another one is COMT. इन एंजाइम्स को हमने पहले पिछली क्लास में भी डिटेल में पढ़ा था, अभी फिर रिव्यू कर लेते हैं। ऐसे कि हमें पता है कि MAO हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स में हमारे पास MAO होगा, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम होगा, वो होगा टाइप B, एंड दिस MAOB इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामीन दैट कन्वर्ट द डोपामीन इनटू 3,4-dihydroxy phenyl acetic acid. And what does COMT do? COMT simply convert dopamine into 3-methyl-tyramine. Now to increase the action of dopamine or replenish the dopamine level, we can simply increase the concentration of dopamine in our synaptic cleft, or we can also inhibit the metabolism or reuptake of dopamine to increase its pharmacological action. The most common drug we have for Parkinson is levodopa. So what is levodopa? We all know that levodopa is basically a precursor of dopamine. तो हम डोपामीन का प्रिकर्सर क्यों दे रहे हैं, हम डायरेक्ट डोपामीन क्यों नहीं दे रहे? उसकी वजह यह है कि डोपामीन हमारे पास जो है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर है और आयोनिक इन नेचर है। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि इसमें आयोनिक एंड है, इसके अंदर अमाइनो ग्रुप होता है और इसके अंदर दूसरे जो है आयोनिक ग्रुप्स हैं। तो जिसकी वजह से इसकी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोफोबिसिटी वो कम होती है और हाइड्रोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। अब जो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। इसी वजह से डोपामीन जो है हमारे पास वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। इसकी जो हाइड्रोफोबिसिटी वो हमारे पास कम है, हाइड्रोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमने जब ये देखा कि L-dopa levodopa एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि L-dopa जो है पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं और वो हमारे जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके इस डोपामीन पाथवे पे जाता है और यहाँ पर जो है डोपामीन का लेवल बढ़ा देता है। लेकिन मसला क्या आता है कि L-dopa भी हमारे पास जो है बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम से मेटाबोलाइज हो जाता है, वो जो है सेफली जो है ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता। और उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम है, इसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो कहलाती है इसकी दो तरह से मेटाबॉलिज्म होगी। अगर वो पेरिफेरल में होगी, मतलब वो ब्लड में होगी हमारे, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं किया उससे पहले अगर होगी तो वो कहलाएगी पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म। और यहाँ पर भी हमारे पास एंजाइम होते हैं दो तरह के, डोपामीन डीकार्बोऑक्सिलेज DDC, ठीक है, या आप नोट कर लें। डोपामीन डीकार्बोऑक्सिलेज एक एंजाइम होता है, दूसरा होता है कैटेकोल मिथाइल ट्रांसफरेज COMT, वो यही वाला एंजाइम है जो हमारे पास CNS में भी होता है। अब पेरिफेरल में क्या करता है, डोपामीन डीकार्बोऑक्सिलेज एंजाइम हमारे पास L-dopa को levodopa को कन्वर्ट कर देता है सिर्फ डोपामीन में। अब जब पेरिफेरल में डोपामीन कन्वर्ट हो गया है तो ये डोपामीन हमारे लिए नॉन यूजफुल है, कोई इसका काम नहीं है, बेकार है हमारे लिए। क्यों बेकार है? क्योंकि पेरिफेरल में और ये CNS के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो हमें ये कन्वर्जन चाहिए, लेकिन ये कहाँ पे चाहिए? हमें
CNS में क्रॉस करने के बाद। तो इसलिए लीवोडोपा को सेफली जो है यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें इस एंजाइम को इनहिबिट करना पड़ेगा। दूसरा एक और एंजाइम हमारे पास कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, ये भी जो है लीवोडोपा को उसके एक डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देता है और उसको जो है इनएक्टिव कर देता है। तो हमने एक और ड्रग हमारे पास डिस्कवर हुई और उसका नाम है हमारे पास कार्बिडोपा। So we always administer levodopa in combination with either carbidopa or entacapone. तो ये दो ड्रग्स हैं हमारे पास, कार्बिडोपा और एंटाकेपोन। कार्बिडोपा क्या करती है, जो पेरिफेरल हमारे पास एंजाइम है डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज DDC एंजाइम है, इसको इनहिबिट करती है और डोपामीन जो है लीवोडोपा जो है हमारे पास वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। लेकिन कार्बिडोपा हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, तो इस वजह से जो है वो CNS के अंदर जाके जो इसकी कन्वर्जन हो रही है इसको इनहिबिट नहीं कर पाती। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आए कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म हाउ द सिंथेसिस ऑफ डोपामीन इज यूज्ड, how the inhibition of synthesis of dopamine is useful in the treatment of Parkinson disease। अब इसको सवाल को समझने की कोशिश करें। जब हमारे पास पार्किंसन डिजीज में डोपामीन की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन फिर भी हम एक ऐसी ड्रग यूज़ कर रहे हैं जो डोपामीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है, तो ये हमारे पास किस तरह से फार्माकोलॉजिकली यूजफुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ इसको। तो इसमें आप लोगों ने यही पूरा मैकेनिज्म डिस्क्राइब करना है कि जो पेरिफेरल हमारे पास मेटाबॉलिज्म होती है, इसमें जो डोपामीन की सिंथेसिस होती है उसको हमें इनहिबिट करना हमारा टारगेट होता है। जो CNS में जो इसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है इसको हम इनहिबिट नहीं करते, और हम जो हमारे पास जो हम ड्रग देते हैं जो एंजाइम को इनहिबिट कर रही है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। इसी तरह हमारे पास एक ड्रग है एंटाकेपोन। एंटाकेपोन अगर हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती तब भी हमें कोई इश्यू नहीं होता, उससे हमें और मज़ीद फ़ायदा होता। वो क्यों होता, क्योंकि एंटाकेपोन इसकी जो डोपामीन की जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म है इसमें इन्वॉल्व होती है। एंड ये जो एंजाइम हमारे पास कैटिकोल और मिथाइल ट्रांसफरेज, ये डोपामीन बनने के बाद उसको ब्रेक डाउन करता है। तो एंटाकेपोन क्या करती है, वो जाके CNS में उसके ब्रेक डाउन को भी रोक देती। लेकिन ऐसा नहीं होता, एंटाकेपोन ड्रग जो है ये भी जो है इसका लार्ज स्ट्रक्चर होता है और ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। तो ये हमारे पास सबसे कॉमन ड्रग है लीवोडोपा, और ये हमेशा कॉम्बिनेशन में जो सबसे ज़्यादा यूजफुल हो, इसके सबसे ज़्यादा कॉमन ड्रग ये आती है मार्केट में, वो कार्बिडोपा के साथ आती है और उसका जो ब्रांड नेम है वो है सिनेमेट। सिनेमेट नाम की एक टैबलेट आती है हमारे पास, उसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है लीवोडोपा और कार्बिडोपा का। इसके और भी ब्रांड आते होंगे, तो ये आप लोगों ने ऐड करना है अपने असाइनमेंट के अंदर भी। सेकंड हमारे पास जो ड्रग आती है वो लीवोडोपा जो आती है हमारे पास एंटाकेपोन के साथ कॉम्बिनेशन में आती है। तो ये हमारे पास एक थेरेपी है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी टू रिप्लेनिश द डोपामीन लेवल बाय यूजिंग लीवोडोपा द प्रिकर्सर। नाउ द नेक्स्ट थेरेपी इज we can also use the drug that inhibit the metabolism of dopamine by inhibiting the enzyme MAOB and COMT, and the most common drugs are selaginine, rasagiline. These both drugs can inhibit the enzyme MAOB, monoamine oxidase B, and by inhibiting this enzyme it inhibits the conversion or metabolism of dopamine into its inactive form, and thus indirectly increasing the concentration of dopamine in synaptic cleft. Now the other drugs are catechol O-methyl transferase inhibitor, and the most common drug is dalkapone। आपने जैसा कि इसका नाम देखा है कि इसका नाम बिल्कुल सिमिलर है जो हमने ड्रग पहले पढ़ी है एंटाकेपोन से, ये सेम क्लास की ड्रग है एंड दे बोथ कैन इनहिबिट catechol or methyl transferase। The only difference in both of them is entacapone only inhibit peripheral
catechol-O-methyl transferase. But telcapone can inhibit both of the catechol-O-methyl transferase, including the peripheral one and also the CNS one. क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। टेल्कोपोन जो है इजीली हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है और वो जो है कैटेकोलोमिथाइल को इनहिबिट करेगी और उसकी जो डोपामीन की कंसंट्रेशन है वो इस तरह हमारे पास साइनेप्टिक क्लैफ में बढ़ जाएगी। सो वी कैन replenish the dopamine level by this method. And the next pharmacological target is mimic dopamine action. किसी भी तरह से जो है जो डोपामीन के हमारा जो फिजियोलॉजिक एक्शन है उसको एगोनाइज करना। अब इवन हमारे पास डोपामीन अगर साइनेप्टिक क्लेफ में मौजूद नहीं है, अगर ये सारे न्यूरॉन्स जो है हमारे पास डिजेनरेट हो गए तो यहाँ पर डोपामीन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एल डोपा देने का यहाँ पे फिर कोई फायदा नहीं होगा, लीवोडोपा जो है वो कन्वर्ट ही नहीं होगा क्योंकि हमारे पास न्यूरॉन्स ही डिजेनरेट हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसी ड्रग देंगे जो डोपामीन के बगैर जो है हमें डोपामीन वाला इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, जो डायरेक्टली आके डोपामीन के रिसेप्टर पर एक्ट करे और उसको डायरेक्टली एगोनाइज करके जो है हमारे पास जो भी डिजायर्ड हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो हमें मिल जाए। तो ऐसी ड्रग्स हमारे पास कौन सी है? इससे कॉमन ड्रग है इसके अंदर हमारे पास ब्रोमोक्रिप्टीन, जो कि बहुत कॉमनली यूज होती है खासतौर पे ओल्ड एज पेशेंट में, क्योंकि पार्किंसन डिजीज ऑब्वियसली जो है ओल्ड एज पेशेंट को ही ज़्यादा कॉमन होती है। तो ब्रोमोक्रिप्टीन क्या करती है हमारे पास, वो डायरेक्टली आके रिसेप्टर पे बाइंड करेगी और उसको एगोनाइज करके डोपामीन का जो हमारे पास इफेक्ट है वो मिल जाएगा। दूसरी ड्रग हमारे पास है इसमें रोपिनेरोल और एपोमॉर्फिन, ये तीन हमारे पास कॉमन ड्रग्स हैं। ब्रोमोक्रिप्टीन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है और इसको आप लोगों ने पढ़ना है डिटेल में। तो ब्रोमोक्रिप्टीन, रोपिनेरोल एंड एपोमॉर्फिन, ये तीनों हमारे पास एज ए एगोनिस्ट यूज होती हैं for dopamine receptors, and it can produce their pharmacological effect without the presence of dopamine neurotransmitter, ठीक है। This is the most important thing and this is the only difference between this therapy and other therapies. We have another drug that indirectly increase the dopamine effect, and that one is amantadine, and it is also a common drug for Parkinson's disease patient. It is commonly used in combination with some other drugs, in combination with either levodopa or in combination with bromocriptine. So what does amantadine do? The mechanism is very simple. It inhibits the dopamine reuptake mechanism through this receptor. So amantadine inhibits the reuptake of dopamine, thus increase the concentration of dopamine and its physiological effect. The another mechanism of amantadine is it inhibits the NMDA receptor. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगा कि NMDA रिसेप्टर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के लिए इंपॉर्टेंट था, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर है? ये है हमारे पास ग्लूटामेट। ग्लूटामेट हमारे पास एक्साइटेटरी, जो कि हमारे पास एक्साइटेटरी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, एंड समहाउ it decreases or it restores the symptoms of Parkinson's disease by inhibiting NMDA receptor. तो NMDA receptor को एंटागोनाइज करके जो है हमारे पास बहुत सारे जो मूवमेंट के हमारे पास सिम्टम्स आते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो एमेंटाडीन के ये दो मैकेनिज्म है, NMDA को इनहिबिट करती है और डोपामीन के रीअपटेक को इनहिबिट करती है। नाउ द लास्ट वन target of our pharmacological therapy is antagonize the excitatory action of acetylcholine. इसमें जो हमारे पास से कॉमन ड्रग हैं वो है हमारे पास वैंसट्रोपिन, the next one is procyclidine, and
These are the common drugs that antagonize the effect of acetylcholine. How they antagonize? What is the mechanism? They all three are choline esterase inhibitor. And we have discussed in detail in our previous lectures what are choline esterase inhibitors. So these are the common drugs that are also used in combination therapy with other drugs like levodopa and amantadine, and these drugs are used to relieve the symptoms of resting tremors and rigidity and other movement disorder that have been other movement symptoms that have been seen in Parkinson's disease. ये हमारे पास जो है सारे कॉमन ड्रग्स हैं and they specifically act in motor cortex. इसी वजह से ये ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है, इनका जो एक्शन होता है वो ज़्यादातर मोटर कॉर्टेक्स में होता है, अदर पार्ट्स में नहीं होता, ब्रेन में होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि एसिटाइलकोलिन के हमारे पास और भी फर्दर एक्शंस होते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, सिर्फ मूवमेंट में नहीं होते हैं। तो खास तौर पे इसके अदर एक्शन जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है मेमोरी डेवलपमेंट में आता है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अल्जाइमर्स की ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप लोग देखेंगे उसका क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। तो ये जो ड्रग्स हैं हमारे पास बेसिकली मोटर कॉर्टेक्स में जाके जो मोटर कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पर जो है एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को इनहिबिट करती हैं और अपना उसका जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं हमारे पास मूवमेंट के, जो हमारे पास इंक्रीज कंसंट्रेशन होती है एसिटाइलकोलिन की, उसको कंट्रोल करती है। तो ये हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ थी। हमने पहले इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, फिर हमने इसके जो है फार्माकोलॉजिकल टारगेट्स देखे और फिर हमने उसकी जो कॉमन ड्रग्स हमारे पास यूज़ होती हैं वो देखी। तो इसकी ड्रग्स को भी जो है आप लोगों ने ऐड करना है अपने असाइनमेंट्स के अंदर, और इसको भी जो है इसकी जो भी इसकी काइनेटिक्स है और डोजिंग है वो सब पढ़नी। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, एंड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।